And is the screen visible too? Yes, ma'am. Your screen is visible and you are audible too. Can we begin now? Yes, ma'am. Sure. All right. Thank you so much. A very warm welcome to each one of you who's attending this session on enhancing life skills. Specifically, we are talking about empathy today. Um, I'm sure each one of you who is attending this session would learn something or the other by the end of this session. This is a 1 hour session, and I'm sure that this particular life skill that we are talking about is not only useful for us as teachers, it is a very, very important life skill for every human being. And imparting this particular life skill knowledge to children is equally important. So let us begin with the session on empathy. Um, okay. So when we talk about the word empathy, there's a lot of other related words that you see here. It talks about compassion. It talks about communication. It talks about that connect which is required, listening, feelings, the presence that you give to people around you, your needs, so many, and warmth. Such words are connected to empathy. And let us understand that empathy, what it actually means, the dictionary meaning of empathy, the feeling that you understand and share another person's emotions and experiences, the ability to share someone else's feeling. जब हम दूसरे की अपनी सोच की और उसके विचारों को हम उसके हिसाब से समझते हो, जैसे ना वी आर नॉट बीइंग जजमेंटल by putting in our thought process in place of theirs. It is very important कि हम जब किसी भी इंसान के साथ कम्युनिकेशन करते हैं या उससे रिलेट करते हैं, तो ऐसे में हमें उनके फीलिंग्स की, उनकी एक्सपीरियंसेस की, उनके इमोशंस की कदर करनी आनी चाहिए. हम उस इमोशन को उसी तरह एक्सेप्ट भी करें जैसे वो खुद आपको एक्सप्रेस करते हैं. लाइक इफ आई एम टेलिंग यू आई एम वेरी अनहैप्पी राइट नाउ, इफ आई से सच अ थिंग, सामने वाला ये ना कहे कि ऐसे कैसे हो सकता, अभी तो तुम थोड़ी देर पहले इतनी जोर जोर से हंस रही थी, अभी तो तुम इतनी खुश थी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, respecting the other person for how he feels or what he communicates in his own way is very important. Empathy is seeing with the eyes of another. अपनी नजरों से नहीं, सामने वाले की नजर से देखना, उसके हिसाब से बात सुनना और उसके सोच के हिसाब से फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जनरली व्हाट हैपेंस विद अस, हम लोगों के साथ, इंसानों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम हर चीज हम अपनी नजर से देखते हैं. कोई चीज हमें नहीं अच्छी लगती तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो सामने वाले को भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए. सो एम्पैथी इज actually trying to understand the way things actually are. Okay, so empathy is the ability to understand and share the feelings of another. किसी भी इंसान की फीलिंग्स को, उसकी काबिलियत को समझना बहुत जरूरी है. It is recognizing someone's fear, कोई डरा हुआ है, अपसेट है, तो उसको उस नजरिए से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान की टॉलरेंस अलग होती है. मुझे अंधेरे से डर लगता होगा, आपको नहीं लगता होगा. दोनों चीज समझ में आ रही है आपको कि अंधेरे से डर लगना एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर हो सकता है, whereas एट द सेम टाइम अंधेरे से डर ना लगना सामने वाले के लिए एक बहुत आसान सी चीज होगी. You don't fear because you don't fear. So this is something that you have to understand, that when you put yourself in the other person's shoes,
हाउ डू यू फील? अगर उसका डर आपको समझ आता है तो आप उसको उस तरह से डील करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा और आपको डर ही नहीं लगता है तो आप यही सोचोगे, अच्छा इसको इस बात का डर लगता है, अंधेरे से कोई डरता है? You know, this is the thought which we can be understood, or it can feel make other person feel comfortable or uncomfortable. Empathy is often confused with sympathy. अब ये empathy और sympathy दो अलग अलग शब्द हैं और हम दोनों को कभी भी एक साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज डिफरेंट। सिंपैथी क्या है? व्हेन यू हैव एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ पर्सन्स फीलिंग, इमोशनली जब हम किसी बात के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो सिंपैथी होता है। कि किसी की कोई चीज खो गई तो आप कहते ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी यू लॉस्ट योर यू नो योर थिंग, ये सिंपैथी होता है। पर एम्पैथी एट द सेम टाइम क्या होता है कि आप उस बंदे की तकलीफ को समझ रहे हो कि उसका वो चीज खो जाना उसको किस तरह से तंग कर रहा होगा, वो किस तरह की सफरिंग के थ्रू बीत रहा है और उसको किस तरह फील हो रहा होगा, वो आपका एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू होगा जब आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो। विद सिंपैथी यू मे फील सैड फॉर द पर्सन, बट देर इज स्टिल अ काइंड ऑफ डिटैचमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट विद एम्पैथी। देखिए, किसी का कुछ खो जाना आपको उसके लिए बुरा लग रहा, ओ माय खो गया, नहीं होना चाहिए था, मतलब इतना ही है। पर किसी की कोई चीज खो जाने पे भी अगर उतना ही दुख हो जितना उस बंदे होने के बाद होता है, वो एम्पैथी कहलाता है। एम्पैथी इज मोर ऑफ अ स्किल रादर देन अ इमोशनल रिस्पॉन्स। तो सिंपैथी एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, एम्पैथी जो है उससे थोड़ा गहरा एक कनेक्ट होता है उस इंसान के साथ, जिसके कारण आप उस आदमी के या औरत के साथ किसी के साथ भी आप कनेक्ट फील करते हो, राइट? When you are empathetic to a person, you are actually feeling for the person, you are trying to stand by him or stand by her in the time of difficulties that the person is going through, right? So this is the difference between empathy and sympathy. Now देखिए, empathy बहुत इंपॉर्टेंट है एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए। इसको बहुत बहुत ब्यूटीफुली इस पिक्चर में दिखाया गया है दैट एम्पैथी जब हम उसको ब्रेक करते हैं अल्फाबेट बाय अल्फाबेट और बेटर कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं, तो आई कांटेक्ट, जब हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो बातचीत करते वक्त हमारा आई कांटेक्ट बना होता है। हमारा एक्सप्रेशन, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होंगे? अगर आप दुखी हैं तो आपका फेस पे वो दुख एक्सप्रेस होता है, आप बहुत खुश हैं तो आप फेस पे वो खुशी झलक रही होगी। आपका पोस्चर थोड़ा उस इंसान को कंफर्ट करने लायक हो, है ना? आप एक डिसइंटरेस्टेड होकर नहीं किसी को कंफर्ट कर सकते, आपका पोस्चर भी उस इंसान को कंफर्ट करने लायक होना चाहिए। और ए इज फॉर एफेक्ट, आप जो कहते हैं जो करते हैं उस इफेक्ट करता है और उसको उससे फर्क, राइट? Tone of voice, am I lot of people are writing no sound, is it that I'm not being heard by everyone? जिसको नहीं सुनाई दे रहा है वो प्लीज अपने सिस्टम को एक बार चेक कर ले, बिकॉज नॉट ऑलवेज इज इट द फॉल्ट ऑफ द स्पीकर, समटाइम्स सिस्टम को नहीं देख पाते। ओके, टोन ऑफ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट आवाज है, आपका टोन अलग होता है। अगर आप खुश हैं तो आपका टोन अलग होता है, आप अगर किसी कंसर्न आ रहे हैं तो आपका टोन अलग होता है। सो यू नो, टोन ऑफ वॉइस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। देन हियरिंग पर्सन, किसी की बात को बहुत पेशेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी आप किसी को ये दिखा सकते हो कि यू केयर फॉर द पर्सन। You care for the person only when you are actually expressing that feeling towards the person. Your response also makes a lot of difference. आप जिस तरह से किसी सवाल का जवाब देते वो भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि response makes the person
कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड। हम किसी इंसान से कब कनेक्ट होते हैं? जब आप उससे उसको सांत्वना देने वाली बातें करते हो, तो आप उससे कनेक्टेड रहते हो। पर आप उससे डिस्कनेक्टेड कब होते हो? जब आपकी बातचीत उसको सामने वाले हर्ट करती है, आपकी बातें उनको अच्छी नहीं लगती, सही नहीं लगती, तो उससे डिस्कनेक्टेड फील करते हो। So empathy is when we know exactly how others feel. सामने वाला कैसे फील कर रहा है, ये जब आपको पता होता है, तब आप empathetic होते हो। समझ में आ गया ना? It is important that empathy should be expressed well by you as a human being towards others. अगर हम किसी की परवाह करते हैं, तो हमारा empathetic होना बहुत जरूरी है। Okay, now let us understand. Just give me a moment. There's some issue that I'm facing here. How to help your child develop empathy? बच्चों में खासकर, क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं, बहुत लोग पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर, हम लोग बच्चों में एम्पैथी किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? Empathize with your child. For example, are you feeling scared of that dog, Maya? He is a nice dog, but he is barking real loud. That can be scary. I will hold you until he walks by. अब देखिए, इस सेंटेंस को अगर आप एनालाइज करें, ये कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, इसको अगर आप एनालाइज करें, तो सामने वाले के डर को आप समझते हुए उससे उस तरह की बात करना जो उसको उस वक्त प्रोटेक्टेड फील करवाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Talk about others' feelings. For example, Kia is feeling sad because you took her toy car. Please give Kia back her car and then you choose another one to play with. कई बार दो बच्चों में झगड़ा हो जाता है, तो आप उसको sort out कैसे करते हो? देखिए, kind of language that you use. Suggest how children can show empathy. For example, let's get Jairam some ice for the cut on his knee. बच्चा गिर जाता है, तो हम लोग बाकियों को बोलते हैं, चलो चलो इसकी हम लोग मदद करते हैं, उसको थोड़ा सा ठंडा पानी पिलाते हैं या उसको बर्फ लगाते हैं। हम जब इस तरह की बातें बाकियों को इन्वॉल्व करते हुए बोलते हैं, तो वो एम्पैथी को रिफ्लेक्ट करता है, राइट? सो एज अ टीचर और एज एन एडल्ट, यू मस्ट बी अ रोल मॉडल फॉर देम। जिस तरह की हरकतें आप करते हो, वही बच्चा आपसे सीखता है, राइट? जैसे घर में अगर आप अपने काम करने वाले पर चिल्ला के बात करोगे, तो बच्चा भी वही सोचेगा कि दिस इज द नेचुरल वे ऑफ डीलिंग विद दैट पर्सन। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ना कि जैसे घर में जो भी काम करता है, उसको भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, उनको भी गुड मॉर्निंग या नमस्ते बोलना चाहिए, उनको भी आप करके बात करना चाहिए, उनको भी काम एक ऑर्डर के रूप में नहीं, रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलना चाहिए। ये सारी चीजें जब हम बच्चों को सिखाते हैं, तभी वो सीख पाते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट when you have strong respectful relationship and interact with others in a kind and caring way, your child learns from your examples. अगर आप बहुत रिस्पेक्टफुली लोगों से बात करते हैं, तो आपके बच्चे भी उसी तरह की बातें करते हैं। हम लोग संस्कार की बात करते हैं ना, घर पे संस्कार कैसे सीखता है बच्चा? जब आप वही चीज डिस्प्ले करते हो। अगर आप अपने माता पिता के पैर छूते हो, तो बच्चा भी चाहेगा कि वो बड़ों के पैर छुए। जिस तरह की घर में परंपरा होती है, आई एम नॉट ब्रिंगिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर फैमिली प्रैक्टिसेस हियर। हम लोगों की फैमिलीज में जिसके घर में भी रिस्पेक्ट को शो करने का जो तरीका होता है, वो यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यूज आई मैसेजेस. This type of communication models the importance of self-awareness. सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है कि मुझे ये बात समझ में आती है, सो आई डोंट लाइक इट व्हेन यू हिट मी, इट हर्ट्स। देखिए, हम लोग ना जनरलाइज करके बात ना करें। मारना बहुत बुरा होता है, बच्चों को आपस में झगड़ा करना नहीं चाहिए, हम लोग कहते हैं। पर उसी चीज को इफ आई से आई डोंट लाइक टू बी बीटन बिकॉज
that I don't like to beat anyone because I don't like to be beaten. तो जैसे I give this personal example to everyone that मैं जब grow up हो रही थी तो मुझे घर में कभी भी मारा नहीं गया या बहुत एब्यूजिवली ट्रीट नहीं किया गया। बहुत वो एक वैल्यू थी हमारे घर में जो रिस्पेक्ट की थी कि छोटा भी है तो रिस्पेक्टफुली डील करना है, मम्मी हो या पापा हो, कभी हाथ नहीं उठाते थे। तो आज इतने वर्षों के बाद आई एम अ पेरेंट, आई डील विथ लॉट ऑफ पीपल, मेरा भी हाथ नहीं उठता है क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ी तो मुझे मारने की या अब्यूजिव होने की जरूरत क्या है। सो आई डोंट लाइक इट व्हेन यू हिट मी, इट हर्ट्स। मुझे मारने से मुझे दर्द होता है, तो अगर मुझे ये तकलीफ पहुंचाता है तो ये मैं किसी और को कैसे कर सकता हूं। ये बात बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। वैलिडेट योर चाइल्ड्स डिफिकल्ट इमोशंस। सबसे पहली बात है, हम इमोशंस की जब बात करते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बच्चों को ये बताना कि इट इज परफेक्टली ऑल राइट टू क्राई व्हेन यू आर अनहैप्पी। देखिए, हम बड़े हो या छोटे हो, आदमी हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, ये बताना कि इट्स कंप्लीटली नॉर्मल टू हैव टीयर्स इन योर आईज। टीयर्स इज अ फॉर्म ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, है ना। तो इसमें कोई स्ट्रेंथ वाली बात नहीं है। पहली बात ये है। तो अगर आप गुस्सा है, अपसेट है, सैड है, डिसअपॉइंटेड है, तो हमें उसको नॉर्मल वे में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। रोया तो ठीक, इट्स ओके, उसमें हंसी उड़ाने वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा गुस्सा, हमारा डिसअपॉइंटमेंट, हमारा दुख हम किसी और के ऊपर नेगेटिवली ट्रांसफर करते हैं तो वो गलत बात है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें किसी ने डांटा तो सामने जो बंदा दिखता है हम उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट आई गॉट, दिस इज व्हाट आई विल गिव यू। This is a very, very wrong way of thinking. It is important that feelings are a part of our life and we should learn to cope with them or handle them. गुस्सा बहुत तेज आता है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको थोड़ी सी देर आप चुप होके आंख बंद करके उसको ठंडा होने का समय दे। उससे क्या होता है कि आप किसी पे एकदम नहीं चिल्लाओगे। So, for example, when you are really mad that someone has turned off the TV, आप चीजें फेंकना, रिमोट उठा के फेंक देना, ये सब क्या है? ये आपका गुस्सा जताने का तरीका है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ओके, काम डाउन, थिंक अबाउट इट, क्यों बंद किया है टीवी? इज इट माई टाइम टू लर्न? पढ़ाई का टाइम है क्या? मेरा खाना खाने का टाइम है क्या? मेरा सोने का टाइम है क्या? जो भी है, understand why, and this is what you have to teach your children, that before throwing tantrums, at least give yourself one moment to think that is this happening because of something. So this is what you have to teach children. So sometimes when our child is sad, angry or disappointed, we rush to try and fix it right away to make the feeling go away because we want to protect him from any pain. बच्चा गुस्सा होता है, बच्चे ने बोला मुझे मोबाइल फोन चाहिए और आपने उसको मना कर दिया। जैसे ही आपने मना किया, उसने मतलब बदतमीजी शुरू कर दी, मारना, पीटना, फेंकना, चिल्लाना, सब शुरू कर दिया। आप क्योंकि उस सिचुएशन को नहीं झेल पाते हो, आप तुरंत उसको कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है मैं दिला दूंगा, डोंट डू दिस। तो क्या होता है? बच्चा चुप हो जाता है। सो ये क्या है? ये बच्चा सीख जाता है कि डूइंग दिस इज only when I do this will my parents listen to me. तो ये आपको समझना है कि ये तरीका बच्चों को समझाने का नहीं होता है। So, however, these feelings are part of life and one that children need to learn to cope with. In fact, labeling and validating difficult feelings actually helps children learn to handle them. You're really mad that I turned off the TV. I understand. You love watching your animal show. It's okay to feel mad. When you are done being mad, you can choose to help me make a yummy lunch or play in the kitchen while मम्मी मेक्स योर सैंडविचेस। देखो कितना अच्छा सा एग्जाम्पल है कि आपने टीवी बंद किया, बच्चा बहुत जोर से चिल्लाने लगा, गुस्सा होने लगा,
तो आपने उससे कहा कि हाँ मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लगा, मैंने टीवी बंद कर दिया, ये आपका फेवरेट शो था, पर दिस इज नॉट द टाइम टू वॉच इट, सो इट्स ओके। जब आपका गुस्सा उतर जाए तो आप बेशक अंदर आ सकते हैं और हम लोग दोनों मिलके कुछ अलग काम करें, चलो या तो केक बेक कर ले या फिर भेलपुरी बना ले या फिर हम लोग वॉक पे चले जाएं या फिर समथिंग विच विल हेल्प हिम टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ द चाइल्ड। This is what you have to teach at that point of time. This type of approach क्या होता है, बच्चों को ये बात समझ में आती है कि गलत और सही क्या है। अगर इस वक्त मुझे किसी चीज के लिए रोका गया है तो इसका कुछ कारण हो सकता है। This the child has to understand. So we have to help the child to understand the reason behind it. Our classroom is a community. हम अपने क्लासरूम में भी बहुत लोगों के साथ डील करते हैं और यहाँ पे बहुत जरूरी है कि we build healthy and social emotional skills in the classroom. हमारे बच्चे हमारे दुनिया के, हमारे देश के फ्यूचर सिटीजन्स हैं, तो उनको सही और गलत में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। एज अ टीचर, आप जो टीचर हैं, आपका बिहेवियर बहुत कुछ डिस्प्ले करता है। अगर एक टीचर बहुत पार्शियल है क्लास में तो बच्चा ये मानने लगता है कि पार्शियलिटी करना इज वे ऑफ लाइफ। टीचर को जो बच्चा अच्छा लगता है बस टीचर उसी से काम कराती है, वो टीचर हर टीचर ऐसी होती है। दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपना बिहेवियर को सही रखें, हम बिल्कुल पार्शियलिटी के साथ ना बिहेव करें, बच्चों की बात सुनना सीखें, लिसन एक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को बोलने देना और बच्चों की पूरी बात सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टिव लिसनर ही कम्युनिकेशन को अच्छे से आगे बढ़ा सकता है। अगर मैंने आपकी बात पूरी सुनी और उसके बाद मैंने जवाब दिया तो इसका मतलब है मैंने समझ के उत्तर दिया है। मैंने आपकी पूरी बात सुनने से पहले ही चिल्लाना और कहना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपकी बात तो सुनी ही नहीं है, मैं अपनी बात आपके ऊपर इम्पोज करने का प्रयास कर रहा हूँ। सो इट्स इंपॉर्टेंट when a child raises hand in the class. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। I was taking a session in a class on bullying. बच्चों के साथ बुलिंग के ऊपर एक सेशन चल रहा था, तो एक बच्चा पीछे बैठा था, वो बार बार ऐसे हाथ ऊपर कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि why are you raising your hand? Is there something that you want to tell me? So he said, ma'am, I want to share something. So I just told him that, let me finish this session. This will take another 15 minutes. And after 15 minutes, promise, I will listen to whatever you are saying. तो वो बच्चा उतनी बात सुन के वो बैठ गया। 15 मिनट के बाद जब सेशन खत्म हुआ तो उसका हाथ फिर से ऊपर उठा। उससे पहले ही मैंने उससे कहा, मैंने कहा, अच्छा रोहन, यू वांटेड टू से समथिंग, वुड यू कम एंड टेल मी व्हाट इज इट? भागा भागा अपना टिफिन पकड़ के आया और बोलने लगा, आज मेरी मम्मी ने टिफिन में पाव भाजी बना के दी है, बहुत टेस्टी है, मैं आपको भी टेस्ट कराना चाहता हूँ। अब आप देखिए, मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक पे क्लास पे बात कर रही थी। एक बच्चा था जिसका उस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और उसको all he wanted to do was to share his feeling at that point of time. At the end of what he said, I said, okay, wow, that is really nice. I will definitely taste it. पर ये तो आपको करना पड़ेगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, उसके बाद अपनी मम्मा को जरूर बताना कि आज का पाव भाजी कैसे बना था। एक कनेक्ट इंस्टेंटली बन जाता है जब आप किसी की बात पूरी तरह से सुन के उसको रिस्पॉन्स देते हो। मेरा कहना बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक चीज होती है जब कोई कहता है तो हम उसको या तो रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, चॉइस हमारी होती है। रिस्पॉन्ड करते हैं तो सोच के जवाब देते हैं, रिएक्ट करते हैं तो बिना सोचे समझे हम सिर्फ ब्लैबर करते हैं। मैं चाहती तो उस बच्चे को चिल्ला के कह सकती थी कि व्हेन आई एम टेकिंग अ सेशन, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी और इरिटेटिंग मी, कांट यू सिट डाउन क्वाइटली? दिस कुड हैव spoiled my relationship with that child, but instead, when I heard him out, I made a relationship with him. This is what active listening does to you. It helps you to build good relationship with people. Teach explicitly, that is, take the time to teach skills to your children. हमारे क्लास में, जैसे अगर आप एक क्लास में हफ्ते में 7 बार जाते हो, तो कम से कम 10-15 मिनट आप कुछ ऐसी बात उनसे जरूर करें जो उनको
टच कर जाए, जो उनको अफेक्ट करे और जो उनको ये समझाए कि एम्पैथी हैज अ बिग इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइव्स। कोई बच्चा पेंसिल नहीं लाता है तो बच्चा बोलता है मेरे पास पेंसिल है, मैं तेरे को दूंगा नहीं। हम बच्चे को बोलते हैं ना, जब आप शेयर करते हो तो कल अगर आप भूल जाओगे तो आपके पास भी कई लोग होंगे आपको वो पेंसिल देने के लिए, क्योंकि आपका attitude towards the other person was good. So, you know, you have to teach them values with examples why we are doing this and why we should not do this, so that they know how it can make you feel if you are in the other person's shoes, right? एम्पैथी, टीचिंग एम्पैथी एज अ लीडरशिप स्किल बहुत जरूरी है। देखिए, टीचर्स आर लीडर्स इन द क्लासरूम, ठीक है? आप उस क्लास के क्लास टीचर हो या सब्जेक्ट टीचर हो, तो आप लीड कर रहे हो उस क्लास में। आप जो भी करते हो, आपका हर 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 मिनट का एक्शन उन बच्चों को अफेक्ट करता है। बच्चा आपको मोमेंट यू एंटर द क्लास टू यू लीव द क्लास, आप ही को देख रहा होता है, आपको जज कर रहा होता है, आपको समझ रहा होता है, आपकी हर चीज को ग्रैस्प कर रहा होता है, आप अच्छे हैं या बुरे ये भी डिसाइड कर रहा होता है, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स लर्न द नेसेसरी सोशल स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप कोई चीज समझाते हो तो उसको सही मायने से समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपर एग्जाम्पल्स देना, क्यों कर रहे हो और क्यों नहीं करना है, ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए, टॉलरेंस भी सिखाना है, एक्सेप्टेंस भी सिखाना है, रिफ्यूज करना भी बच्चों को सिखाना है। टॉलरेंस ऑफ थिंग्स विच आर पॉसिबल, जैसे जैसे बोलते हैं ना, जब हम कहते हैं कि बहुत गर्मी है, अगर हम इस बात को 3 बार 4 बार बोले हाय बहुत गर्म है, हाय बहुत गर्म है, तो आपको गर्म ही लगेगा, पूरे टाइम आपको गर्म लगेगा। अब 4 लोगों को और फील करा दूं कि हाँ बहुत गर्मी है, बट यू नो इट इज अगेन द माइंडसेट विच वर्क्स। अगर आपने सोच लिया गर्मी है तो आपको गर्मी ही लगेगी। अगर आपने सोच लिया कि हाँ इट इज ओके, इट इज वार्मर देन द अदर डेज, तो आप उसको उस सेंस में ले लेते हो। दिस इज व्हाट यू हैव टू टीच चिल्ड्रन, दैट इट इज ओके टू फॉरगेट थिंग्स समटाइम्स, इट इज ओके टू ask for help sometimes, it is okay to share things sometimes, it is okay to say no if you don't like something, you know, बहुत important है। जो चीज आपको पसंद है, कोई आपको कंटिन्यूअसली गलत नामों से बुलाता है, ए मोटे इधर आ मोटे, तो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर सकते हो। आप उसको कह सकते हो कि ये जो आप कह रहे हो ये मुझे पसंद नहीं है। यू नो, एक्सप्लिसिटली कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाले को पता चलना चाहिए कि दिस इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। Whether the person stops or not, you have to make sure that the person is clearly explained the thing that is liked or disliked. Okay? लीडर्स में, जैसे आप क्लास के मॉनिटर हैं, या आप रो मॉनिटर है, या बुक मॉनिटर हैं, या जो भी मॉनिटर है, जहां आपने दादागिरी करी, बच्चे आपको डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनको ये गाइड करो कि आप लीडर जरूर हो, पर आप वन ऑफ देम भी हो, और वन ऑफ देम होने के लिए आपको यू नो लोगों का उस तरफ का फीलिंग को भी समझना जरूरी है। आई डिड नॉट ब्रिंग माई नोटबुक टुडे, सो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट हिम दैट यू नो आई हैव बीन टोल्ड ये है वो है, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वुड लाइक, राइट? So instead of that, you can always say, okay, you've not got the book. I will check with the teacher what is to be done now. Instead of being bossy over the person that if you don't give me the book, I will get you punished. There is a difference in the way you are behaving with the person. Play the empathy game. This is a game that helps students identify and develop, give students scenarios and have them discuss and act out how the people in the scenarios might feel. You know, आपने empathy game में देखिए कार्ड्स बनाए हैं छोटे छोटे। The kids at the park laugh at him. किसी बच्चे के ऊपर लोग हंसी उड़ाते हैं। ऐसे में आप क्या फील करोगे, आप कैसे उस पर रिएक्ट करोगे, राइट? सो यू नो, empathy game helps people to understand कौन से सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, राइट? जैसे मैंने बताया, you have to teach them that I can put myself in someone else's shoe and think how do they feel.
ये बहुत जरूरी है। और यही एम्पैथी गेम का एक मोटिव होता है कि जब आप बच्चों को सिचुएशंस देते हो जो उनके साथ नहीं हुआ है पर कभी भी हो सकता है या होगा, तो उनको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, ये बात उनको समझ में आना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट सर्कमस्टांसेस सबकी डिफरेंट होती है और हमेशा एक ही नहीं रहती है। It is important to understand that today I may not be going through this problem. Tomorrow I might have to go through this problem, or tomorrow same thing can happen to me also. ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। एक बहुत सिंपल सा एक ये एक्सप्रेशन है, बिफोर यू स्पीक, विल इट हेल्प और हर्ट। हमेशा ध्यान रखिए किसी से भी, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप टीचर हैं, आप पेरेंट हैं, आप बच्चे हैं, जो भी हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। बिफोर यू स्पीक, विल इट हेल्प और हर्ट? इज इट ट्रूथफुल एंड काइंड? बी ऑन अलर्ट, some words do harm, so do your part. It's so hard to smooth a wrinkled heart. एक पेपर से आपने हार्ट को बनाया, उसको अच्छे से क्रम्पल कर दिया, फिर उसको आपने खोला, तो पहले वाला पेपर और दूसरे वाले पेपर में बहुत डिफरेंस होगा। पहला एक आयन्ड आउट पेपर है, दूसरा एक क्रम्पल्ड पेपर है। लुक एट द वे अ पर्सन कैन फील। बिफोर यू स्पीक, think and be smart. It is hard to fix a wrinkled heart. This is something that you should always remember as human beings. Okay. A book recommended for children to teach them compassion and empathy. This is a story book, A Wrinkled Heart. If you get hold of it, make sure you read it out to children because it's a very, very sweetly explained thing in this story. मैंने आपको sympathy and empathy के बारे में बताया था। Sympathy is overlook subtle signs and only take surface meaning. आपको बुरा लगा, आपने कह दिया, जैसे आप किसी के घर में डेथ होती है तो आप जाते हो, आप अपनी सहानुभूति जताकर वापस आ जाते हो, आप उसके बारे में पूरी तरह से सैड फील करके दिन रात नहीं बैठे रहते हो। दिस इज अ सोशल ऑब्लिगेशन दैट पीपल डू। किसी का कोई खत्म हो जाता तो आप जाते हो, उनके पास 5 मिनट बैठते हो, आ जाते हो। ये सिंपैथी होता है। Empathy, be sensitive to all kinds of non-verbal cues. Sometimes you don't even have to say something. Just holding the hand of the other person actually makes the other person understand what you are feeling for him. है ना? So when describing what you feel about the other person's emotions, you might use one of the two words, empathy or sympathy. Yes, these words sound very similar. They both come from the Greek word, but are often confused. Being sympathetic is a very normal and a detached kind of a feeling that anybody can have. Sympathy is only acknowledging that the other person is going through an emotion or a physical struggle. Whereas empathy is when you feel for the person, when you put yourself in the other person's shoes and feel what the other person is going through. So there are 3 types of empathy that we talk about. One is cognitive empathy, one is emotional empathy, and one is compassionate empathy. थोड़ा सा टेक्निकल है, पर इसको समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा empathy का concept. Cognitive is understanding how a person thinks and feels on a conceptual level. By understanding how a person thinks and feels, we become better communicators. जैसे होता है ना, बहुत सेंसिटिव आदमी है, उससे अगर बात करने से पहले आप सोचते हो, मैंने उससे अगर ऐसे कहा तो इसको और बुरा लगेगा, तो आई शुड नॉट से दिस। Instead, probably I'll just go and sit with him and उसके साथ सिर्फ बैठना ही मेरे लिए काफी होगा। ये कॉग्निटिव एम्पैथी कहलाती है। इमोशनल एम्पैथी क्या है? When connecting with the feeling of another one at an emotional level. आप उसका हाथ पकड़कर आप ये भी कह सकते हो कि I know what you're going through and please count on me for anything that you require ahead. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये एक इमोशनल कनेक्ट होता है। Compassionate empathy, by going beyond understanding others and sharing their experiences, look
to take action and help however we can. शब्दों की जरूरत जहां ना पड़े, हम एक्शन से जिसको फील कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम जाते हैं और जाकर, जैसे आपको पता है कि दिस पर्सन इज वेरी वेरी सिक टुडे, तो आप उससे कुछ नहीं कहते, आप उसके लिए खाना बना के लेके जाते हैं, उसको बिठा के खिलाते हैं, उसके घर का जो भी मदद करने की काम है बिना बोले जब करते हैं, ये कंपैशनेट एम्पैथी होती है. सो ऑल द थ्री फॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट. समझ के किसी के लिए कुछ करना, फील करके किसी के लिए कुछ कहना, ये, और खुद होके रिस्पॉन्सिबली किसी के लिए कुछ करना, ये कंपैशनेट एम्पैथी में आ जाता है. हाउ कैन यू बिकम अ मोर एम्पैथेटिक पर्सन? आप कैसे एक ज्यादा एम्पैथेटिक पर्सन बन सकते हैं? पहला, एक्टिवली लिसन मोर देन यू स्पीक. ये घरों में झगड़े जो होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ में, या मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ में, या बच्चों में और माओ में, या बच्चों में पिताओं में, ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ज्यादातर इसलिए होते हैं कि हम एक दूसरे की बात पूरी तरह से कभी नहीं सुनते. बड़े स्ट्रिक्ट फादर्स और मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो अपनी सोच को इम्पोज करते हैं, वो कभी भी सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं. और जब आप नहीं सुनेंगे तो सामने वाले की परेशानी आपको कैसे पता चलेगी, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट we at least listen to the other person completely, carefully and without interruption. सामने वाला जब बोलता है तो उसको पूरी बात कहने का मौका दो, उसकी बात पूरी तरह से सुनो, समझो, उसके बाद रिस्पॉन्ड करो. रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो. एक्सप्रेस योर पर्सपेक्टिव. देखिए, होता है हम सामने वाले की हर पॉइंट ऑफ व्यू से अग्रीएबल नहीं होंगे. जरूरी नहीं है कि जो कहता है वो सब सही हो, पर अपनी बात को किस तरह से सामने प्रस्तुत करना है ये भी आना चाहिए. देखिए, मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यूज है, आप ऐसे सोचते हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या हम इन दोनों सोच के बीच का एक रास्ता निकाल सकते हैं क्या? ये भी एक तरीका होता है. आफ्टर यू हैव हर्ड द अदर पर्सन आउट, you are in an excellent position to express empathy by voicing how you would feel in that same situation. For example, that must feel absolutely awful. जैसे किसी ने बोला, आज मैं बस में जा रहा था, इतनी भीड़ थी, इतना धक्का था, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा. तो आपने उससे कहा कि हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, इतनी भीड़ भाड़ में कोई धक्का लगा तो कैसे फील होता है, जगह तो बैठने की मिलने की तो संभावना ही नहीं, ऊपर से लोग आपको पुश कर रहे हो, टच कर रहे हो, कितना गंदा लगता होगा. ये एम्पैथेटिक वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग हो जाता है. बट सामने वाला आपको क्यों बता रहा है कुछ? क्योंकि उसको उस चीज का बुरा लगा होगा. अगर आप उसमें आप तो टाइम से जाना चाहिए था, टाइम से जाते तो उनको भीड़ वाली बस ना मिलती, जगह भी मिल जाती. ये एक एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स नहीं है, बिकॉज आप उसमें उसकी गलतियां ढूंढ रहे हो, आप उसकी गलती का एहसास करा रहे हो, विच इज नॉट द नीड ऑफ द आवर. ठीक है? पुट योर सेल्फ इन देयर शूज, experience the moment as if it were happening to you and let your emotions guide you. देखिए, कितनी ब्यूटीफुली इस बात को कही है कि सुनने के बाद हम उनको उनकी पोजीशन पे अपने आप को रख के अगर सोचते हैं तो हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, हमें पता चलेगा, राइट? वंस यू फील दोज इमोशंस, देन यू वॉइस देम. More often than not, your emotional response will be very similar to theirs. जब आप समझते हो ना दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो आपको गलतियां नहीं नजर आएगी, आपको समस्याओं को हैंडल करने के तरीके समझ में आएंगे. इट विल कॉज द अदर पर्सन टू फील अंडरस्टूड एंड हर्ड, leading to a greater sense of connection between you both. कंपैटिबिलिटी दो लोगों में कब आती है? दो लोगों में कंपैटिबिलिटी तब आती है जब थोड़ी बातें आप लेट गो करते हो, थोड़ी बातें आप लेट गो करते हो. आप दोनों बातों में कभी आपकी सुन ली, कभी मेरी सुन ली, गलत है तो बोलने की हिम्मत रख ली. दिस इज वेयर problems are ironed out. Okay, so this is how you take care of your problems. Be vulnerable. What is the meaning of being vulnerable? We feel vulnerability because we worry that others may perceive us as foolish or weak. Vulnerability actually helps us connect with others because it communicates that we are human, complete with our own weaknesses,
hurts and fears. This creates a feeling of sameness that gives the other person something to connect with. देखिए कई बार the way you behave in a particular situation is how anybody would behave, right? And it is okay to feel insecure. It is okay to make mistakes. It is okay to feel that something has been wrongly done. It is fine. You know, vulnerability actually means that state of being exposed to the possibility of being easily hurt, influenced, attacked, or harmed, either physically or emotionally. So it is possible that such a situation can happen to anybody. And let us not be judgmental about it for others. And don't make assumptions, you know, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है. You know, when you decide that when somebody does this, this is how it results in. You go to a shop and you go to that particular shop to buy things, you will definitely end up paying more money. You know, this is your assumption. It may be that you go to that shop because the quality of the stuff is better, the person who's selling there is a better human being, or you like going there because there is a better way that the person shows you things. So, you know, let us not believe in assumptions, preconceived notions. Rather than that, try to do things or understand a point of view from the point of view of why this is being done. So don't rush empathy, and don't try and empathize before you truly understand the situation. Not necessary that empathy has to be shown at a wrong situation also. A person may be faking, a person may be lying. So when a person is lying and you're being empathetic towards that person, what will happen? You are going into the wrong route, right? Using your imagination, you're not going to be able to relate to every single experience from every single person you encounter. Some things you have never done before, never heard of. At that point of time, you don't even know how to respond, right? So at that point of time, you have to try and think, okay, is it that it feels like this, or is it that it happens like this? So the ability to imagine what someone else is feeling, even if we haven't experienced it ourselves, is critical to empathy. You know, sometimes you have to not knowingly also try to think whether this is the situation. What are the different challenges when it comes to empathy? Empathy requires a complete attention towards the other person. So, you know, to be able to believe someone, to be able to feel for that other person, you should be able to pay attention to that person well. You know, we are so busy most of the times that we don't pay attention to people, and then we just make statements. You know, you must have heard this statement being made by very loose statement made by people that teachers, where do they have work? Teachers are the most lucky people, best profession. There is no work. People only enjoy, you know, being a teacher because they get a lot of holidays and they go in the morning with their children and come back home with the children. They don't have much to do. But you, as a teacher, know it well how it feels to be a teacher. If you are dealing with others, you have to understand that those people are not, um, you know, pushed to such an extent to believe whatever they feel without knowing the reality. Okay, it takes time to understand what a person is going through. So at home also, if you see a child being very disturbed, you do ask them, what do you feel, what are you going through, is there something that is bothering you? And not necessary that the person will answer you instantly. The person may take time to trust you and believe you and answer you. So this is something that you need to look into. Self-esteem gets into the way when your mind is so busy with negative thoughts about you, then you don't have the space to really be present for another person. When you are a negative person, do you think you can empathize with the other person?
because your views are itself negative. When you have negative point of view, it is not possible for the person to think empathetically for the other person. So often people think they are empathetic, but when you consider what are you thinking about, when you're listening to the person, you may find that you're busy thinking about your own self. You start putting yourself in their place and think, okay, when it happens with me, I always get away by it. Why is he feeling so sad about it? So, always trying to put your example to satisfy the other person may not be a good idea also. Preconditioned responses. The longer you know a person, जितना ज्यादा आप किसी को जानते हो, the more history you have with them. उसके बारे में ज्यादा पता होगा, right? And the harder it is to put that aside and simply be with them. क्योंकि आपको सच्चाई पता है, तो उनके साथ एम्पथाइज करने के लिए आपको तरीके ढूंढने पड़ते. You know how the person is, and sometimes you denying something to that person may not work out well. So बोलते हैं ना कि लड़ाइयां होती हैं, तो जितना हम उसको अपने अंदर बसा के रखते हैं, उतना आपको दुख देता है. Sometimes you have to let it go. Sometimes you have to look at it from a different point of view. These are two things that we must take care of. घरों में, रिश्तों में ये चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है कि हमेशा हम सुपीरियर मोड पे नहीं चल सकते हैं. हमेशा सामने वाले की गलती को हम बार बार ऐसे रिमाइंडर नहीं यूज कर सकते, बिकॉज it loses the charm after a point of time. Charm नहीं बोलना चाहिए, it loses the effect after some time, because आप एक ही चीज को बार बार बोलेंगे तो सामने वाला का इसके पास और कुछ कहने को है ही नहीं, ये तो वहीं पे stuck up है. So you should not be stuck up, right? What you need in a caring classroom. Classroom में कैसा atmosphere होना चाहिए? Empathetic concern, इमोशनल एम्पैथी और कॉग्निटिव एम्पैथी, ये तीनों का मिश्रण होना चाहिए. लाइक इट इज द फाउंडेशन फॉर अ केयरिंग क्लासरूम. लाइक द गुड समैरिटन, यू ट्यून इन एंड स्टॉप टू हेल्प. एक टीचर को एक काइंडनेस का मॉडल होना बहुत जरूरी है. हर बच्चे को एनकरेज करना, उनको सपोर्ट करना, उनको मदद करना विदाउट बीइंग पार्शियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज एक बच्चा आपकी तरफ बहुत उम्मीद के साथ आता है, और अगर वो डिसअपॉइंटेड फील करता है तो उसका ट्रस्ट इन एवरी टीचर चला जाता है. और इमोशनल एम्पैथी, द केमिस्ट्री इन आवर कनेक्शन टू पीपल, बीइंग एबल टू सेंस फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट हाउ अ पर्सन फील. एज अ टीचर आपको फील करना चाहिए क्लास की एनर्जी लेवल अगर लो है तो क्यों है, बच्चे क्या बहुत थके हुए हैं, बच्चों के साथ क्या मुझे थोड़ा लाइटर मोमेंट्स देने की जरूरत है, बच्चों के हाथ दर्द करने लगते हैं, ये सब एम्पैथी से आता है. आप ये नहीं सोच सकते थे मुझे तो लिखवाने हैं, मुझे तो 15 क्वेश्चन करवाने ही करवाने, चाहे उनके हाथ दुख रहे हो या पैर दुख रहे हो. ये एम्पैथेटिक होना नहीं है, बिकॉज बच्चा 6 घंटे स्कूल में बैठता है, 8-9 पीरियड क्लास में बैठता है, तो वो सब झेल रहा होता है, अलग अलग टीचर की टैंट्रम्स को झेल रहा होता है, तरीकों मतलब उनके विम्स एंड फैंसीज को झेल रहा होता है. तो आपको उनको भी कंफर्ट करने की जरूरत है. अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल सी द वर्ल्ड एंड थिंक अबाउट इट. क्या पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए एक टीचर बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है, का मतलब सब टीचर्स वैसे होंगे ये नहीं है, और एक टीचर बहुत नेगेटिव माइंडेड है तो सब टीचर नेगेटिव माइंडेड नहीं होंगे. ये बच्चों को बताना भी जरूरी है. और ये भी बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना इंट्रोस्पेक्शन भी करके देखें, व्हाट काइंड ऑफ टीचर एम आई a pleasant teacher in the classroom? Because if I'm not a pleasant teacher in the classroom, I'm not fit to be a teacher. This you have to tell yourself. Only then things work. Remember, empathy always works. How would you like it if the mouse did that to you? Look, a cat has killed a rat, and the mother of the house is telling the cat, how would you like it if the mouse did that to you? तो सही बात है, आप किसी को मार के आते हैं तो आपसे ये पूछा जाए कि आपको किसी ने इसी तरह मारा होता तो आपको कैसा लगता. ये बुलिंग में ये टेक्निक, ये जो एम्पैथेटिक पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर
सिखाना बहुत जरूरी है। एपैथी का क्या मतलब? एपैथी का मतलब होता है आई डोंट केयर इफ यू आर सफरिंग। किसी को कई बोलते हैं ना, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए इसको फर्क नहीं पड़ता है। सिंपैथी, आई फील सैड टू नो यू आर सफरिंग। ठीक है। एम्पैथी, आई एम हियर एंड आई अंडरस्टैंड योर सफरिंग। और कंपैशन, आई विल हेल्प यू एंड लेट यू आउट ऑफ ऑल योर सफरिंग्स। तो एम्पैथी और कंपैशन का कितना इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ्स में है, ये आपको फील करना बहुत जरूरी है। कैसे इंक्रीज करेंगे एम्पैथी? लिसनिंग टू पीपल, एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस। हम लोग सब सिमिलर नहीं होते हैं। आप और दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते। आपकी कमियां मेरी कमियां, आपकी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस मेरी वीकनेसेस एक्सेप्ट करना आना चाहिए। सबके एटीट्यूड्स और बिलीव्स अलग होते हैं, इसको समझकर एक दूसरे के साथ डील करना जरूरी है। बहुत अच्छा तरीका होता है एम्पैथी के बारे में पढ़ना, एम्पैथेटिक स्टोरीज पढ़ना, लोगों के कल्चर के बारे में समझना, कस्टम्स के बारे में समझना, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में समझना, बिकॉज इट मेक्स योर thought process broader. One kind word can change someone's entire day. आपका एक अच्छा शब्द, एक बच्चे को जाके आपने पैट किया ना, तो बोली एंड गुड वर्क, सिर्फ इतना कहना, उसका पूरा दिन बहुत अच्छा जा सकता है। वो घूम घूम के बोलेगा टीचर डिड दिस टू मी, टीचर सेड वेल डन, makes a difference. So be very generous with your appreciations for children, and remember that every child in your classroom will have something that you can appreciate about him. कुछ तो होगा, भले लड़ता होगा, मारता होगा, पीटता होगा, शायद उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, शायद वो सब चीजें कायदे से रखता हो, नहीं भी है तो उसको कोई ना कोई एक वैल्यू सिखा दीजिए आप लोग, जिससे कि आप उसको ही अप्रिशिएट कर सके। Empathy, everybody needs somebody. Model and mirror. You should model and children should be able to mirror it. Put yourself in their shoes. Ask if you can help. Treat others the way you want to be treated. Hurtful or helpful. Decide. You feel better and they feel better when you are empathetic. Simple, words, simple understanding about what empathy means. Before I end, a few quotations here. It says that everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So be kind. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आप वो कभी भी जिंदगी में नहीं भूलते. Sometimes we get so caught up in our problems, we fail to realize others have them too. हम अपनी problems में इतने घुसे हुए होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि औरों की भी problems होती है. If we must fight, let's fight for love. Such a beautiful thing. प्यार के लिए लड़ो ना, नफरत के लिए नहीं. How you make others feel about themselves says a lot about you. आप उनको जैसा फील कराओगे सामने वालों को, उसका उसका ये इफेक्ट होगा कि वो आपके कैरेक्टर को समझने लगता है. Empathy is seeing with the eyes of another person, listening with the ears of another person, and feeling with the heart of another person. And finally, let us take a pledge together, my dear friends. I pledge to myself on this very day to try to be kind in every way. To every person, big or small, I will help them if they fall. When I love myself and others too, that is the best that I can do. With this, I come to the end of the session. Thank you so much for being part of this session. I hope there is something that you will take back with you today with this session and make empathy part of your life. Thank you. God bless you. Have a wonderful day ahead and be the best human beings, best teachers, best parents that you can be. Thank you. Thank you for all the kind words that you have put in the chat box. It means a lot to me. Namaste.